Throughout the Bible, men and women have offered God what is of immense value to them. We want to encourage you that even during these difficult times, do not stop honoring God even with your finances. If you want to send your tithes and your offerings to Capital Christian Center, you have the information on the screen being shown right now. You can either send it through your bank transfer, you can add this bank account information into your beneficiary, or you can directly go ahead and do the transfer on Google Pay. Either ways, your offering or your tithe will be reaching CCC. We want to thank you and we pray that God blesses you. Throughout the Bible, men and women have offered God what is of immense value to them. We want to encourage you that even during these difficult times, do not stop honoring God even with your finances. If you want to send your tithes and your offerings to Capital Christian Center, you have the information on the screen being shown right now. You can either send it through your bank transfer, you can add this bank account information into your beneficiary, or you can directly go ahead and do the transfer on Google Pay. Either ways, your offering or your tithe will be reaching CCC. We want to thank you and we pray that God blesses you. Praise the Lord, my dear friends. Sabhi ko Jai Masih ki. I am so excited. I want you to know that I am so excited. मैं इतना खुश गुजार हूँ, शुक्र गुजार हूँ परमेश्वर के हुजूरी में आज हम आए हैं. क्या आप खुश हैं? Are you happy in God's presence? मैं और विवेक और हमारी पूरी मीडिया टीम हम यही प्रार्थना कर रहे थे. We were praying as we were beginning the service. मैं जानता हूँ कि 19-20 हफ्ते हो गए. I know it's been 19 or 20 weeks, but I told God, we are coming with full force. We are coming with full energy. We are coming with great expectation. Amen. And I want you to come with the same attitude. मैं जानता हूँ कि आप भी थक गए हैं. हमको देख के हमारी शक्ल देख के आप भी थक गए हैं. मगर हमको तो आप दिख नहीं रहे. मगर आपको आपके लिए गाने के लिए परमेश्वर के साथ मिलके स्तुति और आराधना करने के लिए आपके साथ हम नहीं थके. Amen. We are not tired of worship God with you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, you are a very, very important part of this worship service. And I want you to get excited, church. I want you to get excited because God is with us. God is for us. He is going to do something amazing. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने वाला है, हालेलुया. अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक नया चीज आपके जीवन में करने वाला है, अपने पवित्र आत्मा से वो आपको भरने वाला है, तो जोर से बोलेंगे हालेलुया. We lift you up, Lord. Jesus. और जैसे पिछले हफ्ते बोला, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद बना के आएंगे. We will show our teeth and tell everybody that we are glad. When he said unto me, let us go into the house of the Lord, we say, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise, tell Jesus, the wonders of your mighty love. Oh, you're my comfort, my shelter
You are my tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let's lift it up and sing the bass. Say, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Oh, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar. Say, at the sound of your name, I sing for joy at the works of your hands. Tell Jesus forever, forever I love you. Say forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yeah. My Jesus, my Savior, say, Lord, there is none like you in all of my days. I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, you're my shelter, and you are my tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Yes, why? Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand, and nothing compares to the promise I have in you. तू ही भरोसा है मेरा यीशु, तू ही मेरी है चट्टान। हालेलुया, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेके पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेके पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता रहेगा ये उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। स्वर्ग पिता तेरी नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हैं। हे
स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हैं। आराधना हो आराधना हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना हो आराधना, आराधना हो Still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Never fail me yet. Oh,
पूरी हो जाए। तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको बना। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ते भरे,
खुशी से भरे मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है ओ यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है आखिरी बार तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान भंवर के बीच में तू कहता है तू जा तू मेरी ताकत है तू ही मेरी माँ गीत करने तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाला कल में भी होगा उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी बीत कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले पल में भी होगा उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान
तूफानों के बीच में, लहरों के बीच में, चट्टानों के बीच में, खाइयों के बीच में, परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मुझे चला रहा है. God, you are walking with me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, Father, and I thank you for that. परमेश्वर आपके साथ है. परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है. Jesus is with you. God bless you. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this morning. और आज सुबह मैं आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं. And of course, as greetings to my CCC family. और उसी के साथ साथ मेरे परिवार CCC को मेरा अभिवादन. Amen. आमीन. So wonderful to speak to you. और बहुत अच्छी बात है आपसे बातचीत करने के I लिए. get excited every time when I'm getting ready to preach to my own people. और मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब मैं अपने लोगों से बातचीत करता हूं अपने वचन के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. Why? क्यों? Because you're mine. क्योंकि आप मेरे लोग हो. You're close to my heart. क्योंकि आप मेरे दिल के करीब हो. And as I preached last Sunday, you are my children. और जैसे पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया था, आपको बताया था, आप मेरे बच्चे हो. I am your spiritual father. और मैं आपका एक आत्मिक पिता हूं. I'm so pleased to have you as my spiritual और children. आपके बच्चे, आपको अपने बच्चे के रूप में पाना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. I have been a spiritual father for thousands of people. और मैं ये परमेश्वर के द्वारा हो पाया कि मैं बहुत से हजार लोगों के लिए एक आत्मिक पिता के रूप में बन पाया हूं. Just like Paul is calling Timothy my spiritual और son. जैसे पौलुस तिमोथी को एक अपना आत्मिक पुत्र कहलाता है. There are so many people who have been my spiritual sons who have got saved under my ministry, has become great pastors today. और उसी के समान मेरे भी कई आत्मिक बेटे हुए हैं और उनको परमेश्वर की सेवकाई में वो आगे बढ़े हैं और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है. Hallelujah. हालेलुया. A father has got a real love for his children. और एक पिता है जो उसके दिल में अपने बेटे और अपने संतानों के लिए एक सही प्यार होता You है. don't need to do anything to get that love from your father. और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है कि वो अपने पिता के द्वारा उनके प्यार को पा सके. The father loves you because he's your father. पिता अपने संतानों को प्रेम करता है क्योंकि वो उनका पिता है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. My dear friends, COVID is not going away. और मेरे प्रिय दोस्तों, ये जो कोविड है वो बिल्कुल नहीं जा रहा है. 50,000 people every day is increasing. और हर दिन 50,000 के लोगों की तादाद में ये जो संख्या है बढ़ती जा रही है. By the time I am speaking to you today, और जब मैं आज आपसे बात कर चुका होऊंगा, more than 20 lakhs of people have been affected. और जो 20 लाख के करीबन लोग हैं या संख्या है पहुंच जाएंगी. But the only good news is many people are recovering from this. लेकिन उसके साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है कि बहुत से लोग उससे उभर के आ रहे हैं. As you are looking at this virus, और जैसे इस वायरस की तरफ आप अपने ध्यान को लगाते हैं, we see some of the things that are very interesting. और हम बहुत सी अच्छी अच्छी बातों को देख सकते हैं. We think that it only affects people, poor, needy, or normal people. Others are all safe. और आपको ऐसा लगता होगा कि जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो बचाए नहीं जा सकते, उनको ही ये वायरस से पीड़ित होकर के जाना पड़ रहा है. Cover your face. अपने 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 चेहरे को छुपा लीजिए. Put gloves on your hands. और अपने हाथों में ग्लव्स को पहन Stay लीजिए. away from the people. और लोगों से दूरी बना के रखिए. Then you think that everything is fine. और आपको लगेगा कि ये सारी चीजें अच्छी हैं. But the recent past has proven everything is not fine, no matter who you are. और इन ये बीते सप्ताहों में और बीते दिनों में ये पता लग चुका है कि ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है. इन सब से कुछ भी होने वाला नहीं. Amitabh Bachchan was in the hospital for 21 days. और जो हमारे अमिताभ बच्चन जो अभिनेता हैं वो 21 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे. Fortunately, about 2-3 days ago, he is out of the hospital. और अच्छी बात है कि वो हॉस्पिटल से अपने घर आ गए हैं 2-3 दिन पहले. So what are you hearing in the last few days? और पिछले दिनों में आप क्या सुनने में आ रहा है Our आपको? honorable Home Minister, Mr. Amit Shah,
has been tested positive. और जो हमारे माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं जो अमित शाह हैं उन वो भी कोविड पॉजिटिव के पेशेंट पाए गए हैं He is in Medanda hospital. और वो हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं। The chief minister of Karnataka, Mr. Yadurappa, he is in the hospital. और जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं जो येडियुरप्पा हैं कर्नाटका के, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। Sitaramaya, the chief minister before him, he is also in the hospital. और येडियुरप्पा से पहले जो सीताराम करके जो इनका नाम था और वो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। The governor of Tamil Nadu, और जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो भी, the governor of Maharashtra, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो भी, and some of the film actors in Mumbai. और मुंबई में बहुत जो अभिनेत्री अभिनेता हैं ये लोग भी हैं। What is going on? और क्या चल रहा है? So we cannot save ourselves. हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। Our position will not save us. हम जो स्थान या पदवी रखते हैं वो हमें नहीं बचा सकती Our है। money will not save us. हमारे पैसे हमें नहीं बचा सकते हैं। It's almost like a gospel message. और ये पूरे संपूर्णता में एक परमेश्वर का शुभ समाचार है। This is how you preach when you are calling people to Jesus. और तब आप इसी प्रकार का प्रचार करते हैं जब आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित करते हैं। Don't put your trust in anything in this world. आप उनको कहेंगे कि इस संसार में कोई सी भी बातों के ऊपर आप अपने विश्वास को मत रखिए। Don't put your trust in your money, और अपने पैसों पे विश्वास मत रखिए। your position, और अपने जो अपनी जो पदवी है your big house. और आपका जो बड़ा घर है, No. नहीं। But you people won't listen when we preach. लेकिन जब हम ऐसे बातों को प्रचार करते हैं आप सुनते नहीं But हैं। now the virus is preaching. लेकिन अब वायरस है वो अपने आप में प्रचार कर रहा The है। virus is preaching better than Pastor Abraham. और जो वायरस है वो अपने आप में पास्टर अब्राहम से बेहतर प्रचार कर रहा है। Everybody is listening very carefully. और उसको बहुत ध्यान से हम सब लोग सुन रहे हैं। And if people are repenting. और बहुत से लोग अपने आप में पापों का पश्चाताप कर रहे It हैं। is so true. और ये बहुत ही सत्य है। Virus. और ये जो वायरस है, Don't touch me. मुझे मत छूना, Don't kill me. मुझे मारना मत, I don't want to मैं die. मरना नहीं चाहता हूँ, चाहती हूँ। Nobody wants to die. और कोई भी मरना नहीं चाहता है। So who is going to help us? और कौन हमारी मदद करेगा फिर? What is our protection? हमारी सुरक्षा क्या है? Jesus. सिर्फ यीशु मसीह, Jesus. यीशु मसीह, Only Jesus. सिर्फ यीशु मसीह। Nobody else can protect our life. कोई भी हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता And what है। is the good news? और एक सुसमाचार आपको बताना चाहते हैं, Jesus is protecting us. और यीशु मसीह हमको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। Not only he is able, और वो सिर्फ सक्षम ही नहीं है, but he is willing and he is doing it. और वो सक्षम वो अपने आप में कर सकता है और वो कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। It's time for us to hold on to Jesus. और ये समय आ चुका है कि हम यीशु मसीह को अपने अपने बाहों में ले लें, Love him with all our hearts. अपने पूरे हृदय से प्रेम करें, Live for him. उसके लिए जिए, Glorify his name. उसके नाम को ऊंचा करें। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And God will bless us. परमेश्वर हमें आशीष देगा। I hope that you're all doing well. और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं, We're all praying for every one of you. और हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And last week it was so nice to speak to you, looking at your face through the Zoom meeting. और पिछले सप्ताह में हम सब लोगों को एक दूसरे के द्वारा ये जूम मीटिंग के द्वारा आप सबके चेहरे देख पाए, अच्छा लगा। Different people from the ministry team, और जो हमारी सेवकाई की जो टीम है उनमें से अलग अलग लोग, they were given a group of people. और उनको कई लोग दिए गए थे। So I was given the group of people who are the people, the grown-ups, the older people, the people who are the pillars of the church. और मुझे उन लोगों की अगुवाई करने के लिए दिया गया था जो अपने बहुत उम्र में बड़े हैं और हमारी कलीसिया के एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। And of course people like Ranjit and Simon, they were all talking to the younger और generation. जो पास्टर रंजीत हैं और मैं हूं और जो दूसरे लोग हैं सेवकाई में, वो अन्य लोगों से बातचीत कर रहे थे। And I will set up the iPad for Sister Joyce when she's having the meeting with the Sunday school children. और जब जो जॉयस आंटी है जब वो संडे स्कूल के बच्चों से बातचीत करती है तो मैं उनके लिए आईपैड का सेटअप करता हूं। So when I'm setting it up, I see the faces of this
teachers and some of the parents. और जब मैं ऐसा काम करता हूँ, सेटअप करता हूँ आईपैड में, तो मैं सारे बच्चों को जो संडे स्कूल में आते हैं और जो उनको सिखाने वाले उनके शिक्षक हैं, मैं उनको देख पाता हूँ And it is so nice. और बहुत अच्छा लगता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Are you ready to give to God? क्या आप परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? Have you been giving to God? क्या आप परमेश्वर को देते आ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया, We are givers. हम देने वाले हैं। CCC is the church of givers. और सीसीसी एक देने वाली कलीसिया के रूप में कहलाई जाती है। Are you saying amen? क्या आप मेरे साथ आमीन कह सकते हैं? You're saying amen with Pastor Abraham? क्या आप पास्टर अब्राहम के साथ आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। I'm pleased to give. और मैं देने में मुझे अच्छा लगता है। Whenever I am calling Simon to give, because I give online, what is that? Swipe machine. और जब कभी भी अंकल मुझे स्वाइप मशीन के द्वारा अपने टाइट को देने के लिए बुलाते हैं, So he will ask me, how much money? और तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कितना पैसा है, And I will tell him. और वो मुझे बताएंगे, And you look at me, और मैं उनको देखता हूँ, and you say, सही तो बोलो ना. और It's too much. और मैं उनसे कहता हूँ कि ये सही है, इतना ही पैसा है। I said, yes. और मैं कहता हूँ हाँ इतना ही है, I want to give. क्यों मैं देना चाहता हूँ। Because giving should be the character of every God's people. और परमेश्वर के हर एक जन के चरित्र में ये देने की भावना उभरनी चाहिए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you, Lord, for making us givers. और हमें एक अच्छा देने वाले बनाने के लिए धन्यवाद। Take our tithes and offerings and receive it from our hands, Lord. और परमेश्वर हमारे हाथों के द्वारा हमारे जो टाइथ है और हमारी जो भेंटें हैं उन्हें ले लीजिए। Lord God, I pray that you'll take it and use it for your kingdom. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि इसको लेकर के आप अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल I करेंगे। pray that you'll bless every brother and every sister. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर एक भाई और बहन को आशीष देंगे। I bless every family. और मैं हर एक परिवार को आशीष देता हूं, Meet all their needs, Lord. और उनकी सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, Take care of their finance. और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा कीजिए, In Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Do you like my white kurta today? और आपको अंकल का व्हाइट कुर्ता पसंद आ रहा है जो इन्होंने आज पहना है? I'm wearing this after 5 months. और अंकल कह रहे हैं कि मैंने इसको 5 महीने बाद पहना है। I was not wearing any kurta because there was no need. I was just wearing my shirts when I was preaching. और मैं प्रचार करते समय शर्ट का इस्तेमाल कर रहा था, कुर्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। Amen. I took this white kurta out. You know why? और आपको पता है क्यों आज मैंने ये व्हाइट कुर्ता पहना है? Because I was going to conduct the wedding of Sijin. और आज मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज मैंने हमारे सिजन भाई की जो शादी है उसको पढ़ने के लिए मैं गया था। Amen. आमीन। Sijin is a brother of Lijin. और जो हमारे सिजन भाई हैं वो हमारे पास्टर लिजन के भाई हैं। And he is married on Friday, Saturday, Thursday, right? या On Thursday to a beautiful girl called Hepzibah. और थर्सडे का जो दिन था उन्होंने एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की से शादी किया जिसका नाम है हेप्शिबा। And it was like a COVID virus kind of a wedding. Only 45 people could come. और ये जो कोविड-19 के से भरा हुआ एक शादी था जिसमें सिर्फ 40 लोग आ पाए। Only 40 chairs there. और सिर्फ वहां पे सामने सिर्फ 40 चेयर लगी थी। But everything else was good. लेकिन सारी चीजें अच्छी हुई। Brother Kevin arranged all the flower arrangements and the stage. Everything was very और good. हमारे केविन भाई ने सारे फूलों का बंदोबस्त किया, सारे स्टेज का अच्छा बंदोबस्त किया। And you know your pastor anyway. और आपको आपके पासवान के बारे में आपको पता ही है। And I did a good job. और मैंने बहुत अच्छा प्रचार I किया conducted a nice wedding ceremony. और मैंने एक बहुत अच्छी सेरेमनी को मैंने वहां पे होने का मौका दिया। Amen. And that's enough. और अभी के लिए काफी है। We're going to preach from God's word. और हम परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to hear the word of God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए? We are going to look at one of the very familiar parables
that Jesus spoke when he was in this world. और यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उन्होंने बहुत ही एक सामान्य और बहुत ही अच्छा एक पैरेबल या कहानी बताई थी अपने चेलों को। Amen. आमीन। That is the parable of the 10 virgins. और ये वो कहानी है 10 कुंवारियों की। Amen. आमीन। Turn with me to the Gospel of Matthew, और आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार chapter 25. और 25वां अध्याय We are going to read verse 13. और हम 13वीं आयत से पढ़ेंगे। And we read here, और यहाँ पे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The story is like this. और कहानी कुछ इस प्रकार से है। In the early days in Palestine, और फिलिस्ती में पहले के प्राचीन दिनों में, and it happens even now in our part of the country, in Delhi and other places. और हमारे देश के कई स्थानों में और दिल्ली में भी ऐसा होता है। When the bridegroom is coming for the wedding, और जो ब्राइडग्रूम जब शादी के लिए आती है, दूल्हा आता है शादी के लिए, he's coming on his horseback. और वो अपने घोड़े के ऊपर घोड़े पे होकर के सवार आता है। And we know the people waiting on the roadside with the lights burning. और जो लोग हैं वो उसके पीछे पीछे अपनी लाइट को लेकर के उसके पीछे पीछे चला करते Some हैं। years ago, और कुछ समय पहले they used to have the Petromax light, like putting kerosene oil and you pump और it. कुछ ऐसा हुआ करता था, हम इस प्रकार की लाइट होती थी, हमें केरोसिन डालना पड़ता था और हमें ऐसे करके उसको जलाना पड़ता था। But now it has become a bit more modern. लेकिन अब हम एक आधुनिक समय में जी रहे हैं। Now the people will be carrying the tube lights and there's a generator man coming with और them. अब लोग अपने सर के ऊपर जो लोग हैं उसको ट्यूबलाइट को रखेंगे और उसके साथ साथ पीछे जनरेटर चलता रहेगा। So in those days, the purpose of these women carrying the lights is to give light to the procession. और उस समय प्राचीन समय में ये जो औरतों का काम होता था कि ये लाइट दिखाना है, वो इसलिए होता था ताकि वो रस्ते में लाइट जला करके दिखा सके। And they will pay for them. और उनको पैसा दिया जाता था। Amen. आमीन। So that is where our story begins. और वहां पे हमारी कहानी की शुरुआत होती है। There is 10 virgins. और 10 कुंवारियां हैं 10 women. और 10 औरतें हैं। And as we go along, we see that out of them 5 were wise and 5 were foolish. जैसे हम आगे बढ़ते हैं कहानी में हमें दिखाई देगा 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख स्त्रियां हैं। But when the story began, they were not differentiated like that. और लेकिन जब कहानी की शुरुआत होती है तब उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है कि वो किस प्रकार की हैं। Amen. आमीन। Only as the story went on, then suddenly they became 2 groups, 5 became wise and 5 became foolish. और जैसे कहानी का अंत होने लगता है तब पता चलता है कि उनमें से 5 मूर्ख हैं और 5 बुद्धिमान औरतें हैं। Let me compare them first. और आइए मैं उनको सबसे पहले उनके बीच में एक अंतर दिखाना चाहता हूं। Number 1, और पहली बात, they were all virgins. और वो 10 की 10 कुंवारियां थी। All of them were virgins. और पूरी कुंवारियां थी अपने You know आप what a में। virgin means? आपको पता है कि एक कुंवारी होना उसका मतलब क्या है? She was never touched by a man. और किसी आदमी के द्वारा उन्हें छुआ नहीं गया That था। means she is keeping her life holy, और इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन को पवित्र रखा है keeping her life from sin. और अपने जीवन को पाप से बचा के रखा है She is living a protected life. और वो अपना एक सुरक्षित जीवन जी रही है। All the 10 of them were virgins. और पूरी 10 के 10 कुंवारियां थी। Number 2, दूसरी बात, all the 10 of them went to meet the bridegroom. और 10 के 10 दूल्हे से मिलने के लिए गई थी या प्रतीक्षा में थी They were the same. और वो बिल्कुल एक समान थे। Number 3, तीसरी बात, they all have their lights with और them. उनके सबके पास अपनी अपनी ज्योति थी या दीपक था या लाइट थी। Amen. आमीन। And number 4, और चौथी बात, they all sat in one place and waited for the bridegroom. वो एक ही जगह पे बैठ करके दूल्हे की प्रतीक्षा में लगी हुई थी They were serious. और वो बहुत ही सचमुच में सीरियस थी या उनकी जो प्रतीक्षा में वो बैठी हुई थी They were eagerly waiting for the bridegroom. और वो जो दूल्हे की प्रतीक्षा में सचमुच में
में बैठी हुई थी, because they were waiting for a long time. क्योंकि वो काफी लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा में थी। All the 10 of them went to sleep. और 10 के 10 सोने के लिए चले गए। Amen. आमीन। You should remember, at all this time they are doing the same. और आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अब तक ये पूरे समय में वो एक ही कार्य कर रहे हैं। And then they heard the sound, the bridegroom is coming. और तब उन्हें एक आवाज आती है कि दूल्हा जो आ रहा है। And the Bible says, और वचन कहता all है, the 10 of them woke up. और वचन कहता है कि 10 के 10 उठ गए। It's not like 5 woke up and the others said, we want to sleep more. और ऐसा नहीं है कि 5 उठ गए और 5 कहते हैं कि हमें और सोना है। They were not like Peter sleeping in the garden of Gethsemane. और ऐसा नहीं है कि वो पतरस गेत्सेमने के बगीचे में सो रहा था, उसके समान नहीं था। They all woke up. और वो सब उठ गए। And now और अब things started changing. और जो चीजें हैं उनके बीच में बदलने लग जाती They हैं। all light their lamps. और उन सब ने अपने दीपक को जलाया। And 5 women, और जो 5 औरतें थी, they found their lamp was not burning. उनको पता लग जाता है कि उनको महसूस हो जाता है कि उनका जो दीपक है वो नहीं जल रहा है, It is not lighting up. और वो जल ही नहीं रहा है। Then they realized that is because there is no oil in the lamp. और उनको ये समझ में आ जाता है, आभास हो जाता है कि उनके दीपक में तो तेल है ही नहीं। It was that moment और उस समय these women were divided into 2 groups. इन पूरी 10 की 10 कुंवारियों को 2 समूह में बांट दिया जाता है। Amen. आमीन। What happened? क्या होता है? One group became wise. और एक जो समूह है वो बुद्धिमान वाला समूह कहलाया जाता है, The other became foolish. और जो दूसरा है वो मूर्ख वाले समूह के रूप में गिना जाता है। If your lamp is not glowing, और अगर आपका दीपक नहीं जल रहा है, the bridegroom doesn't need you और ये जो दूल्हा है उसे आपकी जरूरत नहीं है, because he wants your light. क्योंकि वो आपके दीपक की ज्योति को चाहता है। That is the only way that you can come and be a blessing to the bridegroom. और तभी उस दीपक की ज्योति के द्वारा ही आप उसके पास आ सकते हैं और उसके लिए आशीष बन सकते हैं। Amen. आमीन। What is the meaning of this parable? और ये जो कहानी है इसका मतलब क्या है? The meaning is written in verse 13. और 13वीं आयत में इस जो पैरेबल है या कहानी, उसका मतलब हमें दिखाई देता है। And it says you must be ready और कहा जाता है आपको जागते या तैयार रहने की जरूरत है, because you don't know the time, the day or the hour of the coming of the Son of Man. क्योंकि आपको समय और दिन पता नहीं है कि मनुष्य का पुत्र कब आ जाएगा। Amen. आमीन। The meaning of this parable is not the oil, the lamp, the sleep or the vessels. और इस कहानी का मतलब दीपक, ज्योति या तेल ऐसा नहीं है। Of course, these are all included in this parable. और ये जो चीजें हमने बताई है ये बिल्कुल जरूरी है, उस कहानी के हिस्से हैं। But the message is be ready. लेकिन उस समाचार का जो मतलब है या अर्थ है वो है तैयार रहना। Hallelujah. हालेलुया। Their lamp was not burning. और उनका जो दीपक है उसमें ज्योति नहीं है या वो नहीं जल रहा So है, they could not go. और वो नहीं जा पाए। The procession kept on going. और ये जो दूल्हे का जो आने का जो समय था वो आ गया और चले The गया। wise women, wise virgins went with the procession. और ये जो बुद्धिमान जो 5 कुंवारियां थी वो उनके साथ चली गई। Amen. आमीन। And they entered into the house with the bridegroom. और वो दूल्हे के साथ दूल्हे के कमरे में चली गई। Let me touch on a few things quickly, please. और जल्दी से मैं कुछ बातों को छू करके आपको बताना चाहूंगा। Based on the story, और इस कहानी के आधार पे I want to give you some important lessons for us to learn. और मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं आज हमें हमारे जीवन में जिसकी जरूरत है सीखने की। Number 1, पहली बात, we need to be prepared. हमें तैयार होने की जरूरत है। It talks about the wise virgins. और ये हमारी वो जो अपने आप में जो बुद्धिमान की जो स्त्रियां थी उनके बारे में बताया जाता है। Amen. आमीन। It says they were prepared. और ऐसा कहा जाता है कि वो जो बुद्धिमान औरतें थी वो अपने आप में तैयार थी। It is wisdom to be prepared. और ये बुद्धिमान की बात है अपने आप में तैयार रहना। The question is, when am I supposed to be prepared? और इसका मतलब ये उठता है कि हमें तैयार रहने की कब जरूरत है।
Preparation must be made beforehand. और तैयारी जो है वो समय से पहले करने की जरूरत है। You don't prepare during the problem. और जो परेशानी आती है उसके बीच में हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। You don't prepare at the time of crisis. और परेशानियों के समय हमें तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ती है। If you are a sportsman, और अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, how do you prepare? आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? You just come and you run on the ground and you prepare at that time? क्या आप उस समय आकर के अपने आप को तैयार करते हैं क्या? No. नहीं। If you do that, you will never win that race. और अगर आप ऐसा करते हैं आप उस रेस को नहीं जीत पाएंगे You कभी should भी। keep on practicing. आपको लगातार आपको तैयारी करने की जरूरत है। You should keep on exercising. आपको लगातार व्यायाम करने की जरूरत है। You should keep yourself fit. और आपको अपने आप में फिट रहने की जरूरत है। And then only you can run the race and win the race. तभी आप उस रेस में भाग सकते हैं और आप उस रेस को जीत सकते हैं। And how do you prepare for the exam? और आप एग्जाम या परीक्षा के लिए कैसे तैयार करते हैं अपने On आप the को? day of the exam? क्या जब एग्जाम की घड़ी आ पड़ती है तब? No. नहीं। You will prepare much before that. लेकिन उससे कई समय पहले आप तैयार करते हैं। You will keep on studying your book. और आप लगातार अपनी बुक को उठा करके पढ़ाई करते रहेंगे। You will be memorizing the important answers. और बहुत से प्रश्न उत्तरों को आप याद करते रहेंगे, कंठस्थ करते रहेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That is how we prepare ourselves. और ऐसा ही हम अपने आप को तैयार करते हैं। What happened to the people of Israel? और इस्राएल के लोगों के जीवन में क्या हुआ? The people of Israel were not prepared for their Messiah. और इस्राएल के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया एक मसीहा जो आने वाला है। Messiah came to the world. और मसीहा तो आ चुका था दुनिया में। But what happened? तब क्या होता है? The Jews were still banging their head on the crying wall. और जो यहूदी लोग हैं अभी भी वो जो रोने वाली दीवार है उस पे अपना सर पटक पटक करके रोते हैं। And Jesus stood there and said, और वहां पे जो यीशु मसीह है वो वहां पे खड़े होकर के कहता I है, am the Messiah. और मैं हूं एक मसाया, I am the Son of और God. मैं हूं परमेश्वर का पुत्र। I came to die for you. मैं आपके लिए मरने आया हूं। And they said, और वो कहते हैं, he is blaspheming. और वो बोलता है कि ये आरोप लगा रहा है, झूठी बात करता है, He is not our Messiah. और वो हमारा मसीहा नहीं We है। are waiting for the Messiah. हम तो अपने मसीहा के लिए बाट जो रहे हैं। Why? क्यों? They were not prepared for the Messiah. क्योंकि वो अपने मसीहा के लिए तैयार नहीं बैठे थे। Messiah came. और मसीहा तो आ चुका था, Messiah died. और मसीहा तो मर गया, Messiah rose from the और dead. मसीहा तो मृतकों में से जी उठा। What happened? क्या हुआ? They did not know. उन्हें पता ही नहीं चला। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The same way, the question is, what about you? Will you be ready and prepared when Jesus comes back? और उसी समान ये प्रश्न हमारे सामने भी रखा जाता है, क्या आप तैयार होंगे जब यीशु मसीह की घड़ी आ पहुंचेगी? Amen. आमीन। Whatever is happening in the world today, और दुनिया में आज जो भी कुछ हो रहा है या चल रहा है, it is giving the sign that He is coming. और ये हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है कि वो आ रहा है। Amen. आमीन। He will come so suddenly. और वो अचानक से आ जाएगा, Suddenly on the cloud. और अचानक से वो बादलों पे दिखाई देगा, Suddenly the trumpet will sound. और अचानक से तुरही फूकी जाएगी, And my Jesus, और मेरा यीशु मसीह, your Jesus, आपका यीशु will मसीह, appear on the cloud. और वो बादलों पे दिखाई देगा। And the Bible says, और वचन कहता है, everyone who is ready for Him, और जो कोई भी उसके लिए तैयार है, with a twinkling of an eye, और पलक झपकते ही, they will be picked up from this world. और वो इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, They'll be taken to be with Him. और वो उसके साथ होने के लिए उठा लिए जाएंगे। Are you one of them? क्या आप उनमें से एक हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to क्या be taken? क्या आप उसके साथ जाने के लिए उठा लिए तैयार हैं? Amen. आमीन। What is happening these days? क्या हो रहा है इन दिनों में? Of course, the virus has brought a big fear in the hearts of people. और ये तो मान लीजिए कि ये जो वायरस है इसने सबके दिलों में एक डर को पैदा तो कर दिया है, Even the ungodly people और जो अविश्वासी लोग हैं are worried these days. वो भी इन दिनों में परेशान है, They are calling out to God. और वो परमेश्वर को चिल्ला रहे हैं, They are calling out to Jesus. वो यीशु मसीह के नाम को चिल्ला रहे हैं, Because
because of the fear. और ये डर के वजह से, Because the virus is standing at your door. और ये जो वायरस है वो आपके घर के पास खड़ा हुआ है, It is like death coming and knocking at your door. और ऐसा है जैसे एक मौत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। Amen. आमीन। How are we going to save ourselves? हम कैसे अपने जीवन को बचाएंगे? Amen. आमीन। What is happening with the people? और लोगों के साथ क्या हो रहा है? Normally they are indifferent. और Indifferent. एक अभिन्नता को एक भिन्नता को दिखाई जा रहा They है, are careless people. और वो अपने बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। Amen. आमीन। That is what they do. और वो इसी बात को करते हैं, Because of that, they are not prepared. और क्योंकि इन बातों की वजह से वो तैयार नहीं है। That's number one. और पहली बात, Hallelujah. हालेलुया। So what happened? और तब क्या है? When the bridegroom came, और जब दूल्हा आ पहुंचा है, they said the bridegroom is here. और वो कहते हैं कि जो दूल्हा तो आ पहुंचा है, All the 10 virgins got up. और ये जो 10 की 10 कुंवारियां थी वो उठ गई, They all tried to light the lamp. और वो अपने दीपक को जलाने की कोशिश कर रही हैं। And the 5 wise virgins, और ये जो पांच जो अपने आप में wise virgins. जो विद्वान हैं, Amen. आमीन, What happened to them? उनके साथ क्या होता है? They had their lamp full of oil. और उनका जो दीपक है उसमें तेल पूरी तरीके से भरा हुआ है, They light it, और वो उसको जला देते हैं, and immediately the lamp started और burning. अचानक से उनका दीपक जलने लगता है। And the other foolish virgins, और ये जो मूर्ख जो 5 कुंवारियां हैं, they were also lighting the lamp. और वो भी अपने दीपक को जलाने की कोशिश कर रही हैं, But लेकिन the lamp was not lighting up. उनका दीपक है वो नहीं जल रहा है। And they checked. और वो देखते हैं, They're checking the lamp. वो ऐसे हिला करके चेक कर रहे हैं। Then they realized there was no oil in that lamp. तब उन्हें पता चल जाता है कि उनके जो दीपक में जो तेल की कमी है। Amen. आमीन। So what did they do? और तब वो क्या करते हैं? They go to the wise virgins और ये जो बुद्धिमान जो कुंवारियां हैं वो उनके पास जाते हैं, and they said, और तब वो कहती हैं, give us some. और ये मूर्ख कुंवारियां वो बुद्धिमान कुंवारियां से कहती हैं कि हमें कुछ तेल दे दो, Keep yourself some, और तुम्हारे पास जो है उसे भी रखो, but give us some. लेकिन उसमें से हमें कुछ और दे दो। Amen. आमीन। They are foolish virgins, और ये जो मूर्ख स्त्रियां हैं, but still they are very chalak. लेकिन फिर भी वो अपने आप में चालाक हैं। Amen. आमीन। They are trying to tell what the wise virgin should do. और वो ये बता रही हैं वो बुद्धिमान कुंवारियों को कि उन्हें क्या करना चाहिए। Amen. आमीन। But the wise virgin said, लेकिन ये जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं, no, it won't work. वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। Why? क्यों? When we go along, क्योंकि जब हम उन दूल्हे के साथ जाएंगे, our oil will finish, हमारा जो तेल है वो खत्म हो सकता है, and your oil will also be finished. और आपका जो तेल है वो भी खत्म हो जाएगा। So none of us can enter with the तो bridegroom. हम में से 10 के 10 हम में से कोई भी दूल्हे के साथ नहीं जा So पाएंगे। you go and buy it yourself. तब आप एक काम करो, आप अपने लिए जाकर के तेल खरीद के We लाओ। are going with the bridegroom. हम दूल्हे के साथ आगे बढ़ते हैं। So what happened? तब क्या होता है? They joined with the bridegroom, और वो तो दूल्हे के साथ शामिल हो गए, and they went along the way. वे उनके साथ चलने लगे। But the foolish virgin ran to the shop to buy it. और ये जो मूर्ख कुंवारियां थी वो दुकान के पास भागने लगती हैं तेल को प्राप्त करने के लिए। But the procession was gone. लेकिन जो दूल्हे के साथ जो जाने का जो समय था वो तो खत्म हो चुका That था। is my second point for और you. ये है मेरा दूसरा बिंदु आपके लिए। We cannot borrow from others. हम दूसरों से उस समय या ऐसी घड़ी में खरीद नहीं सकते। Oil speaks about the Holy Spirit. और ये जो तेल है वो पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। If you don't have the oil, अगर आपके पास तेल नहीं है, you have to get it yourself. आपको अपने आप में वो तेल लेने की जरूरत है। You cannot borrow from others. आप दूसरे से खरीद नहीं सकते हैं। Every one of us must have our own oil. हम सबके पास अपने आप के तेल की होने की जरूरत है। Do you have the oil in your life? क्या आपके जीवन में तेल है? Do you have the Holy Spirit in your life? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है? Amen. आमीन। Your lamp should be burning. और आपका जो दीपक है उसे जलने की जरूरत है। That will happen only when the Holy Spirit is in your वो life. तभी हो पाएगा जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। Amen. आमीन। Number 2, दूसरी बात, we cannot borrow preparedness. और हम
तैयारी को या एक तैयारी की जो बात है उसको दूसरे से नहीं खरीद सकते हैं। Amen. आमीन। You have to prepare yourself. हमें अपने आप में तैयार होने की जरूरत है। You cannot be prepared because Simon is prepared. और आप ऐसा नहीं है कि साइमन तैयार है तो आपको भी तैयार आप भी No. तैयार हो। I must be prepared for myself. मुझे अपने आप में तैयार करने की जरूरत He है। must be prepared for himself. हो सकता है कि वो अपने आप के लिए तैयार हो चुका होगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We cannot borrow the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को दूसरे से नहीं खरीद सकते हैं। Amen. आमीन। We cannot borrow faith. और हम दूसरे से विश्वास नहीं खरीद सकते हैं। We must have our own faith. हमें अपने विश्वास को होने की जरूरत है। I cannot live according to Simon's faith. और मैं साइमन के विश्वास के आधार पे नहीं रह सकता हूँ। Simon cannot live according to my faith. और जो साइमन है वो मेरे विश्वास के आधार पे जिंदा नहीं रह सकता है। Amen. आमीन। We all should have our own faith. हमें अपने विश्वास खुद के विश्वास की होने की जरूरत है। Because without faith we cannot please God in our हम lives. अपने विश्वास के ना होने से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते And we हैं। need faith to live in this world. और हमें इस जिंदगी में या दुनिया में रहने के लिए विश्वास की जरूरत है। God is looking at you and me as a man, as a woman of faith. परमेश्वर आपको और मुझको एक विश्वास के पुरुष और विश्वास की स्त्री के रूप में देख रहा है। Amen. आमीन। We cannot borrow character. हम चरित्र को नहीं खरीद सकते हैं। We must be a man of good character. हमें एक अच्छे चरित्र के इंसान होने की जरूरत है। We must build a good character. हमें एक अच्छे चरित्र को बनाने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। How does the story end? और कहानी कैसे समाप्त होती है? They got the oil. और उन्हें तेल मिल गया। I'm talking about the 5 foolish virgins. मैं 5 मूर्ख कुंवारियों के बारे में बातचीत कर रहा हूं अब। Amen. आमीन। And they got their lamp burning. और उन्होंने अपने द्वारा अपने दीपक को जलाने की कोशिश कर ली। And they rushed to the house of the bridegroom. और वो दूल्हे के घर में भाग करके जाते हैं। The door was closed. और वहां पे क्या हुआ? दरवाजा बंद हो They चुका knocked था। at the door. और वो खटखटा रहे हैं दरवाजे Please पे। open for us. हमारे लिए दरवाजा खोल दीजिए। We were with other 5 virgins. और हम भी वो 5 अलग कुंवारियां थी। We waited. हम भी प्रतीक्षा में थे। We were looking forward for you. हम आपकी प्रतीक्षा में बाट जो रहे थे। But the oil was blessed. लेकिन जो तेल था वो कम था। So we could not make it. इसलिए हम नहीं आ पाए। Please open the door. हमारे लिए भी दरवाजा खोल दीजिए। What did the bridegroom say? तब दूल्हा क्या कहता है? I'm sorry. मैं क्षमा चाहता हूं। It is too late. और ये बहुत देर हो चुकी है। It's too late. बहुत देर हो चुकी है। I don't know you. मैं आपको जानता भी नहीं हूं। That's the saddest part of this story. और इस कहानी का सबसे दुखद एक भाग है ये। They did everything like the other people. और उन्होंने दूसरे लोगों के समान सब कुछ किया जिसकी जरूरत थी। They lived like the other virgins. और वो 5 जो बुद्धिमान औरतें थी उनके तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया। But they missed out in one thing लेकिन उन्होंने एक चीज को भूल गए अपने जीवन में करना, that destroyed their whole life. जिसके द्वारा उनका पूरा जीवन खराब हो That's गया। number 3 as I finish. और ये तीसरी बात, उसके बाद मैं समाप्त करना चाहूंगा। There comes a time it is too late. और एक समय आता है जो बहुत ही अपने आप में ना के बराबर है या लेट हो जाए होने वाला समय है। Living for Jesus Christ is not easy. और यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को बिताना बहुत ही कठिन You है। should walk with him till the end. और आपको उसके साथ आखिरी तक चलने की जरूरत The है। Bible says again and again, और वचन बार बार हमें यह बतलाता है। he that is faithful till the end. और वो जो आखिरी तक विश्वास योग्य है। And Paul says like this, और पौलुस कुछ इस प्रकार कहता है अपने शब्दों में, Demas loved the world. और आपको Demas, उसका नाम और दीमस एक पुरुष का नाम है, वो इस दुनिया से प्यार करता He था। was the disciple of Paul. और वो पौलुस का एक चेला था। He loved the world. और वो दुनिया से प्रेम करता था। And he left away from him. और तब वो उससे छूट जाता है। And he explains in a nice figurative speech, और वो like a picture. और वो बहुत ही एक काल्पनिक चीज में, काल्पनिक रूप में उसके बारे में बताता है। Paul says, पौलुस कहता है, many people have wrecked their ship in the middle of the ocean. और बहुत से लोगों ने अपने जहाजों को समुद्र के बीच में
टूटता हुआ पाया है they couldn't make it to the other side. और वो एक तट से दूसरे तट तक नहीं पहुंच पाए हैं। A time comes when it is too late. और एक समय आ जाता है जब बहुत ही वो अपने आप में ना के बराबर है। But what's the good news for us? लेकिन हमारे लिए एक सुसमाचार की बात क्या है? The good news is और सुसमाचार की बात ये है it is not too late now. और अभी है, वो अब भी लेट नहीं है अपने आप में। We have got the time. हमको समय मिला हुआ है, We can prepare ourselves. हम अपने आप की तैयारी कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We must be ready for the bridegroom. हमें दूल्हे के लिए तैयार होने की जरूरत है। Amen. आमीन। It is not like some people, they get so emotional listening to a good sermon. और कई बार ऐसे होता है कि बहुत से लोग अपने आप में बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कुछ प्रचार को सुन के, But they don't do anything according to the लेकिन sermon. उस वचन को सुनने के आधार पे वो कुछ करते नहीं है। People get so emotional sometimes. और कई बार लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं अपने जीवन But you में। should know the emotion is a sign of shallowness. और आपको ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको अगर आप इमोशन है तो वो अपने आप में खालीपन है। Jesus said you must count the cost when you follow him. और यीशु मसीह कहता है जब आप उसके पीछे चलते हो तो उसके पीछे चलने की बातों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। Some people are stubborn at the moment. और कई बार होता है, कई लोग हैं जो अचानक से उसका पीछा करते हैं। They don't listen to the word. और वो है वो वचन को परखते नहीं है। My dear friends, remember this. और मेरे प्रिय मित्रों, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। One day, soon and very soon, और एक दिन बहुत जल्द और बहुत जल्द ही the bridegroom will come. दूल्हा आ जाएगा। He will enter into the house. और वो अपने घर में चले जाएगा। The door will be shut. और जो दरवाजा वो बंद हो जाएगा। Then you say it is too late. तब आप अपने आप में कहोगे बहुत ही लेट हो चुका है। Let me finish. और मैं अपने आप में खत्म करना चाहता Jesus हूँ। said, यीशु मसीह कहता है, therefore watch और इसलिए जागते रहो and be ready, और तैयार रहो, because you do not know the coming of the Son of Man. क्योंकि आपको परमेश्वर के पुत्र के आने का समय नहीं पता है। Prepare yourself. अपने आप में तैयार हो जाइए। Let your lamp glowing with oil. और होने दीजिए कि आपका जो दीपक है वो हमेशा तेल के साथ जलते रहे। Let us be always ready to meet Jesus Christ. और हम लगातार अपने आप में इस प्रतीक्षा में रहें कि हम यीशु मसीह से मिल पाएं। Heavenly Father, स्वर्ग के पिता we परमेश्वर, praise you and we thank you, Lord. और यीशु मसीह हम आपके नाम को ऊंचा उठाते Thank हैं, you, Lord, for धन्यवाद कहते हैं। challenging us with your word. धन्यवाद देते हैं, आप अपने वचन के द्वारा हमें चुनौती देते हैं। Thank you, Lord, for reminding us that you are coming very soon. और धन्यवाद हमें ये बतलाने के लिए कि आप जरूर आएंगे। Prepare us to meet you, Lord. और हमें तैयार कीजिए कि हम आपको मिल पाए। Lord, speak to our hearts every day. और यीशु मसीह हमारे दिल से प्रतिदिन बातचीत कीजिए। Take care of all our people. और हमारे लोगों की सुरक्षा कीजिए। Fathers, mothers, young people. और जो जवान हैं और जो माता लोग हैं, जो भी लोग हैं, Our children. हमारे बच्चे लोग, Protect every one of them, Lord. और उन सब की सुरक्षा कीजिए। We give you the praise and glory. हम आपको आदर और सम्मान देते हैं। In Jesus' name I pray. और यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore. Amen. आमीन। Amen. God bless you, my dear friends. और मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे। I enjoy preaching from God's word. और मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के वचन में से प्रचार करना। May the Lord take care of you. परमेश्वर आपकी रक्षा करे। Stay safe, stay home. अपने घर में रहिए, ध्यान से रहिए। May God's divine protection be upon you. और परमेश्वर की दैविक सुरक्षा आप सबके जीवन पे बनी रहे। I love you very much. मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। I'll miss you all the time. मैं आपको हमेशा याद करता हूँ। By the way, don't expect the church to open any recent times. और आप इस बात की प्रतीक्षा में मत रहिए कि चर्च कभी भी खुलने वाला है। कभी भी नहीं, not in the near future. और इस समय में आने वाले 3-4 महीने में चर्च नहीं खुलेगा। So don't worry about that. और चर्च के बारे में आप चिंता मत करिए। When the church is ready to open up, we will inform you. और जब चर्च अपने आप में खुलने में सक्षम होगा, हम आपको बताएंगे। Drag you out of the house. और हम आपको घर से खींच करके We लेके will आएंगे। make sure you are in the church. और हम ये बात को आपसे कहेंगे, होने देंगे और करेंगे कि आप अपनी कलीसिया में जरूर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आपको मिलना चाहता हूं। Because I want to meet you.
Amen. आमीन। I can't wait to see every one of you. और मैं बस अब रुकना नहीं चाहता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि आपसे मिल पाऊँ। God bless you. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे।